very good morning to all of you. Hope you all are good wherever you people are. And we have been missing the classes from last 3-4 days. I have not uploaded any video, but I have shooted it. And the day I'll upload all the videos. Okay, no problem, no issues there. So I will have to read it all. And as we know that we are doing the chapter triangles, and maybe this will be the but two more classes will be needed to complete this chapter. So today we will be doing some of the very important questions. Okay, and along with we will be doing one congruency rule. Okay, we will be discussing one congruency rule, which is the RHS rule. Okay, I have discussed it earlier in my first video of this chapter, but again I am discussing it with few people. And the second is your side angle side, angle side. All these we know, but the RHS I am again going to discuss it with you, because in that exercise which we will be doing now, it will be mostly based upon the questions will be based upon the RHS congruence rule only, and we will have to do it by that only. So we will have to do it, hai? So for RHS congruence rule, the most important thing is that we can apply it only on the right angle triangle. Right angle triangle, it can be applied. First thing, and the very important thing. Okay. The next thing, it is only applicable to right angle triangle. Okay. अभी देखो तो I am drawing two right angle triangles here. Okay, one. This is Q. Okay. Suppose this is P, Q, R, and suppose this is A, B, and C. It is angled at A and it is right angled at P. Okay. Now, if it has been given two triangles, how we will prove it by right hypotenuse side? Means what should be equal? There are three things which should be there. The first thing which will be always there, that is the 90-degree angle. It will be common. Okay. The second thing is the perpendicular height should be equal. The perpendicular height means always AC should be equals to PR. This is the perpendicular height. This should be equal. And if the perpendicular height is taken, मतलब अगर इसका हो गया तो बचा कौन सा साइड? ये एक साइड बचा और ये एक साइड बचा, है ना? हाइपोटेनस बचा और बेस बचा. अब इन दोनों में तुम लोग को ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा इक्वल है. अगर दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है तो इट्स ओके, लिख देंगे, या फिर दोनों का बेस इक्वल है तो लिख देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका हाइपोटेनस और इसका बेस अगर इक्वल है तो हम लोग लिख देंगे, नहीं लिख सकते. इफ वी आर गोइंग थ्रू RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, वी कैन नॉट राइट इट, क्योंकि हम लोग को पता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही तो लेते हैं. तो हाइपोटेनस का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस होता है, बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग बेस होता है. तो अगर हम लोगों का एक 90 डिग्री इक्वल, 90 डिग्री दोनों इक्वल, परपेंडिकुलर हाइट दोनों इक्वल, और हाइपोटेन्यूज भी दोनों का अगर इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS क्राइटेरिया रूल. अंडरस्टूड? ये हम लोग आसानी से जो है वो बोल सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होने वाला है इसमें. ठीक है, अंडरस्टूड? यही है RHS में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. ठीक है, NCERT का जो है आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.3 है एक्चुअली. सो वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज 7.3 टुडे. आई थिंक कि एक्सरसाइज समझने में तुम लोगों को कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? डिस्कशन तो हम लोग साथ में ही करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट देन एक्सरसाइज 7.3. ओके, लेट्स स्टार्ट देन एक्सरसाइज 7.3. देन आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द इनइक्वालिटीज, एंड आई विल ट्राई दैट इन दिस क्लास ओनली. मैं जो एक्सरसाइज 7.3 पूरा अच्छे से तुम लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँ, है ना? ये मैं ट्राई करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3. एंड तुम लोग भी अपना अपना बुक निकाल लो, देखो क्या करने हैं ना. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? लेट्स स्टार्ट. सो इट्स टेलिंग दैट ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. Okay, they are two isosceles triangles which they are on the same base BC. Okay,
नो प्रॉब्लम, है ना. And the vertices are A and D, okay, on the same side of the BC. Okay, if AD is extended to intersect BC at P, AD is okay extended to intersect the BC at P. Okay, अच्छा पहले ये जो BD था, ये जो DP है फिगर में तुम्हारे, ये DP was not there, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है. ओके ठीक है. तो शो दैट, चार चीज़ यहाँ पे शो करना है. ABD congruent to ACD, then APB congruent to ACP, then your AP bisects angle A, angle D. Oh my goodness, चार चीज़ें, इट विल बी बड़ा, है ना. चलो कोई बात नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट व्हाट इज गिवन टू अस, है ना. क्वेश्चन तो हो गया, फिगर बना लेना. फिगर तुम लोग बना लेना, बुक में दिया है, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, है ना. एट फर्स्ट ड्रॉ द फिगर. ओके, आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर you will have to what, you will have to write the given things. तो फर्स्ट में जो है वो given क्या क्या है, देखो. what is given, that triangle ABC and triangle DBC, triangle ABC and triangle DBC are isosceles. isosceles का मतलब पता ही है तुम लोग को, है ना, इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं. तो isosceles triangle है, ठीक है. अगर ABC और DBC आइसोसेलेस है तो इसका मतलब क्या है ये बताओ. AB इज इक्वल्स टू AC, है ना, एंड DB इज इक्वल्स टू DC. ये इसका मतलब है AB इज इक्वल्स टू AC एंड DB इज इक्वल्स टू DC. ये तो क्लियर है. अच्छा, उसके बाद तुम लोग को ये पता है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB. जो पता है सब लिख दो एक्चुअली, समझे. पिछले दिन भी मैंने कहा था कि वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम, है ना. एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB, है ना. कोई दिक्कत नहीं होगी गिवन लिखने में, जो है सब लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में. तो सोल्यूशन नंबर 1 शुरू करते हैं. तो 1 में हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया है दो ट्राइंगल को, तो हम लोग कंसीडर करेंगे दैट कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. कंसीडर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ओके ठीक है, कंसीडर भी कर लिया मैंने. है ना, ABCD, ये है P, ठीक है. तो यही है. हम लोग को चाहिए ABD ये वाला और ACD ये वाला. तो ABD और ACD में तो एक चीज़ कॉमन है, वो है AB इज इक्वल्स टू AC. अच्छा, दूसरा चीज़ कॉमन है BD इक्वल्स टू CD. दो चीज़ मिल गया. और तीसरा चीज़ जो कॉमन है वो है AD. हो गया कॉन्ग्रुएंट, खत्म, कोई झमेला नहीं था, है ना. साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया. बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, है, हम लोग कर लेंगे, है ना. फर्स्ट वाला जो है वो बाई S वी कैन डू इट है. तो AB इज इक्वल्स टू CD फर्स्ट, BD इक्वल्स टू CD सेकेंड एंड AD इज कॉमन. हो गया बाई साइड, ठीक है. तो चलो मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में बोलता है ABP एंड ACP. लिखो तो, कंसिडरिंग ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. ओके, ABP, ओके, दिस वन ACP. ओके, चलो इन दोनों का हम लोग को कंग्रुएंट करना है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो हम लोग को इसमें AP है जो कि कॉमन है, ऑब्वियस से बात है, दिख रहा है ना. AP जो है वो कॉमन है, फर्स्ट थिंग. दूसरा चीज़ है कि AB और AC कॉमन है, ठीक है, इक्वल है ना. तो फर्स्ट थिंग लिख लो AB इक्वल्स टू AC, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग लिख लो AP इक्वल्स टू AP, कॉमन, और ये है गिवन, है ना. अच्छा, और थर्ड चीज देखो क्या हो सकता है, ये एंगल साइड क्या BP इक्वल्स टू BC है, नहीं, नॉट गिवन, अभी तक तो दिया हुआ नहीं है ना. ट्राइंगल ABD और ACD को हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना.
अच्छा, ये एंगल इक्वल होगा, ये बताओ, ये एंगल इक्वल होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था फर्स्ट वाले में, तो कॉन्ग्रुएंट का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए बी इज इक्वल्स टू पी ए सी, लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर डी ए बी इक्वल्स टू डी ए सी है तो पी ए बी भी होगा, क्योंकि ए डी का एक्सटेंशन है डी पी, ए डी को एक्सटेंड कर दिया गया, तो लिख सकते हैं ना। तो लिख लो तुम लोग, ये बात लिख लो कि सिंस डी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए सी, ये लिख लो, सिंस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। अब ये क्यों हुआ, ये इक्वल क्यों हुआ, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी सिंस ट्रायंगल एबीडी इज congruent to triangle ACD। तो ये अगर इक्वल है, since DAB is equals to DAC, therefore angle PAB is also equals to PAC, है ना। ठीक है, तो ये एक चीज मिला, यहाँ पे दो साइड मिला, तो साइड दो एक तो एंगल, तो बाई SAS साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABP will be congruent to triangle ACP। ठीक है ना, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, देख लो। ओके, ठीक, सो दिस इज डन। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज D। ये जो AP लाइन है ये A को भी बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब पता ही है, दोनों एंगल को हाफ हाफ करता है ना। तो यहाँ पे तो बाइसेक्ट लिख सकते हो, इक्वल है दोनों, आसानी से लिख लोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल पता है तुमको इक्वल है ना, तो तुम लोग लिख लोगे आराम से। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो सीपीसीटी से इक्वल लिखोगे ना, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो है एंगल ए वाला, वो तो आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एंगल, वी नो एंगल PAB is equals to angle PAC, therefore PA bisects angle A। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब एंगल D के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज ट्रायंगल PDB एंड ट्रायंगल PDC। तो कर लो, कंसीडर ट्रायंगल PDB एंड ट्रायंगल PDC। ठीक है ना, कर लिए कंसीडर। ओके, अब इन लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको पता है PD कॉमन, BD इज इक्वल्स टू CD, है ना। एंड अगर ये है आइसोसेलेस तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, जो हम लोग लिखे हैं DBC इक्वल्स टू DCB, लिख लो, तीनों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो इसको तुम लोग साइड से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो BP इज इक्वल्स टू PC। अब बोलो कैसे, BP इक्वल्स टू PC कैसे लिख सकते हो, ये बताओ। सीपीसीटी से, क्योंकि अगर हमको पता है डायरेक्ट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू APC, तो BP विल बी इक्वल्स टू PC बाय सीपीसीटी। तो उस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। और अगर तुम लोग चाहो, जो तुम लोग पहले गिवन ले लिए थे हम लोग, उससे करने का, तो उससे भी तुम लोग कर सकते हो। मैं उसी से करूंगा जिसको मैंने गिवन ले लिया था। वैसे तुम लोग चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लिख लो क्या क्या कॉमन है। तो DB इक्वल्स टू DC, पहला थिंग, द फर्स्ट थिंग इज DB इक्वल्स टू DC। Okay, first thing given, this is given, this is equal, this is given, okay, then PD equals to common, okay, third thing, साइड ले सकते हो तुम लोग, BP इक्वल्स टू PC, मैं नहीं ले रहा, मैं एंगल ले रहा, क्योंकि ये भी गिवन है। DBC इक्वल्स टू
DC भी देखो कितना कुछ दिया हुआ है तुम्हारे लेने पे है ना। साइड साइड एंगल मतलब साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है ना। ट्राइंगल PDB या फिर BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDC। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। एंगल PDB एंगल PDB इक्वल्स टू एंगल PDC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो देयरफॉर DP नहीं AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। ठीक है, ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ठीक है, वेरी गुड, वी शैल मूव फॉरवर्ड, है ना। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज अ नंबर 4, है ना। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector of BC means AP जो है एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये बता रहा है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये यहाँ से 90, यहाँ से, मीन्स एंगल DPC और एंगल APC शुड बी 90 एंड एंगल APB शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तुमको, है ना। कैसे कर सकते हो बताओ? बोलो, कर सकते हैं, बहुत आसान है। सोचो सोचो, ये दोनों एंगल इक्वल है, BPA या फिर BPD ही पकड़ लो, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है। तो सपोज मैंने पकड़ा BPA इज इक्वल्स टू CPA, है ना। और ये जो एंगल है यहाँ पे पूरा, ये पूरा एक U बना रहा, छाता, अम्ब्रेला बना रहा, अम्ब्रेला मतलब 180 डिग्री। तो दोनों को लिख देते हैं फिर, BPA एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल्स टू 180। अच्छा, हमको पता है ये दोनों इक्वल है, सिंस BPA इक्वल्स टू CPA, हम लोग किसी भी एक को कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया 2 BPA ले लिया, दोनों को BPA ही रख लिया। 2 BPA इक्वल्स टू 180, तो एंगल BPA इक्वल्स टू 180 बाई 2, दैट इज 90। तो एंगल BPA क्या हो गया, 90। तो सिंस BPA इज इक्वल्स टू CPA, तो CPA विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 90। और अगर ये 90 है, दिस मीन्स व्हाट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। तो ये तुम लोग अब लिखो कि यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे यू राइट एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल CPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अंडरस्टूड? ये था क्वेश्चन, समझ में आया, है ना। These things are very much time taking, कुछ करने का नहीं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है ना। एक एक क्वेश्चन को करने में हम लोग को 25 मिनट्स 20 मिनट्स लग जा रहा है, कुछ करने का नहीं, क्या करोगे, है ना। चलो, अंडरस्टूड, उम्मीद है सब समझ गए होंगे तुम, है ना, कुछ नहीं था। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तुम लोग रीड कर लो फटाफट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को। मैं भी देखता हूँ क्या है, करवाने लायक है कि नहीं, कि तुम लोग खुद से कर सकते हो, देख लेता हूँ एक बार, है ना। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC, तो show that AD bisects BC and AD bisects angle। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। एक एल्टीट्यूड बोल दिया, मतलब तुमको पता नहीं है ना, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बता दिया है। AD bisects BC प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, तुम लोग कर लोगे शायद, है ना। I think that you people can do it,
है ना? मैं क्या सही सोच रहा हूँ? ये बताओ। एल्टीट्यूड बोल दिया है मतलब 90 डिग्री तो तुमको उधर ही दे दिया है ना। AD बाइसेप्स BC, फिगर बना देता हूँ, बस थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? देख लो, ABC AD is an altitude of isosceles triangle ABC. ओके, एक isosceles triangle है ABC, है ना? ABC, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड है AD। प्रूफ करने बोला है कि AD बाइसेक्ट्स BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रूफ ये करना है हमको that BD equals to CD, ये हमको प्रूफ करना है। This is what I have to prove. So for proving this, what I want, ये दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूफ करना पड़ेगा। We will have to take ट्राइंगल ADB and ट्राइंगल ADC। अब उसमें भी देखो, मैं बता देता हूँ, AD अगर एल्टीट्यूड है मतलब ये 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री है ना। तब देखो क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री यहाँ मिला, एक 90 डिग्री यहाँ मिला, एक चीज। अच्छा, सेकंड में ये इक्वल, दो चीज मिला। थर्ड में AD, उसका भी AD, इसका भी AD, है ना। तो भाई RHS क्राइटेरिया, RHS के लिए है ना ये एक 90 डिग्री, RHS का फर्स्ट क्राइटेरिया, हाइपोटेन्यूज इसका, RHS का सेकंड क्राइटेरिया, परपेंडिकुलर इसका, दोनों का परपेंडिकुलर तो सेम है, AD है, तो दोनों का परपेंडिकुलर, तो भाई RHS क्राइटेरिया ये दोनों कंग्रुएंट। अगर ये दोनों कंग्रुएंट तो BD इक्वल्स टू CD बाई CPCD, खत्म कहानी, है ना। अब ये बोलता है कि ये बाइसेक्ट करता है कि ना, ऑब्वियसली ये दोनों अगर कंग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल होगा ना CPCD, क्योंकि अगर दो कंग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो वो भी हम लोग सेम चीज ही है, एक बार कंग्रुएंट प्रूफ कर लो, दोनों चीज जो है तुम्हारा जो भी गिवन है, नंबर 1 एंड नंबर 2 बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AD बाइसेक्ट्स BC, दोनों ही CPCD लिख दोगे, आंसर तुम्हारा हो जाएगा, है ना। CPCD पहले भी बोले थे फर्स्ट क्लास में दैट CPCD इज वेरी यूजफुल थिंग, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है ना। एक्सक्यूज मी, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। अच्छा, मीडियन क्या होता है पता है ना? मीडियन जो होता है एल्टीट्यूड और मीडियन, दीज थिंग्स यू हैव रेड इन क्लास 7 कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड। मीडियन मतलब जहाँ पे भी वो बन रहा है ना, मीडियन अगर है तो वो इक्वल हाफ में काटेगा। अगर सपोज कर लो मैं बोलता हूँ कि AD इज मीडियन, मीन्स ये दोनों जो साइड होगा वो इक्वल होगा। मीडियन का यही मतलब है कि वो डिवाइड करता है इक्वल हाफ में, है ना, ये बात है। चलो, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Two sides AB, we will have to prove triangle ABM congruent to PQN, MBM and PQN. I think this is very simple, ना? AB is equals to PQ and AM equals to PN and QN equals to BM. चाहिए क्या? हो तो गया। अरे बाबा, very simple, very simple तो, है ना। BM इक्वल्स टू QN होगा तो, क्योंकि अगर तुमको BC इक्वल्स टू QR बोल दिया है ना, क्वेश्चन में बोला है गिवन, अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन में इट इज बीन गिवन दैट इक्वल साइड्स PQ एंड QR, है ना। AB और PQ इक्वल है और QR और BC भी इक्वल है, तो BC और QR इक्वल है तो BC का हाफ BM और QR का हाफ QN, तो BM इक्वल्स टू QN होगा ना। तो उस तरीके से कर लेंगे, कोई झमेला नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टू डू हियर, दिस इज वेरी सिंपल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। DE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence prove that the triangle ABC is isosceles. देखो यहाँ पे बोल दिया है that you will have to use RHS congruency rule, और कोई रूल तुम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो, यह यहाँ पे बोल दिया है तुमको, तो तुमको वही करना पड़ेगा, जो बोला है वही करना पड़ेगा ना।
तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे इसमें, ये हम लोग करेंगे इसका फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर कैसा होगा ये देखना पड़ेगा, है ना। तो एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद BE और CF दो एल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC बनाओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में। ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, है ना। ओके, ABC। ओके चलो, यहाँ पे बोलता है या BE एंड CF, BE एंड CF, तो B से एक E एल्टीट्यूड बनेगा यहाँ पे, है ना। दिस इज BE, और C से एक एल्टीट्यूड बनेगा यहाँ पे जो होगा CF, है ना। ओके, तो BE और CF एल्टीट्यूड है। तुमको प्रूफ करने बोला है दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। मींस ABC आइसोसेलेस मतलब क्या, यू विल हैव टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC। CPCT से ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन से ट्रायंगल को पकड़े। तो मेरे को तो दिख रहा है ट्रायंगल, उम्मीद है कि तुमको भी दिख रहा होगा, है ना। ACF और ABE, ये दो ट्रायंगल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, तो हम लोग का काम हो जाएगा, है ना। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, है ना। नीचे वाला जो दोनों ट्रायंगल है जिसका कॉमन बेस है BC, तो यहाँ से हमको फायदा मिलेगा, BC कॉमन हो जाएगा, है ना। एक 90 मिलेगा, और दूसरा जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। BCE में BC कॉमन है, एक 90 डिग्री भी है हम लोग का, और आफ्टर दैट बी। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, आ जाओ। तो प्रूफ करने के पहले गिवन लिख लेते हैं ना। लेट अस राइट द गिवन। तो व्हाट इज बीन गिवन? गिवन इज BE एंड CF एल्टीट्यूड। BE एंड CF आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझ जाओ, 90 डिग्री। अच्छा, उस पर बोला इक्वल भी है, तो BE इज इक्वल्स टू CF भी बोला है। चलो तो कंसीडर करते हैं, प्रूफ करते जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे लिखना, यू विल राइट हियर that what is to be proved. You write to prove, okay, then you will start the proof. So you will write consider triangle BCF and BCE, triangle BCE. In that what you have BC equals to BC, you have BC equals to BC, first thing. Second thing, you have this angle CFB is equals to BEC. Angle CFB equals to angle BEC, 90 डिग्री। अच्छा, एल्टीट्यूड है, उसके बाद है BE equals to CF, गिवन इक्वल एल्टीट्यूड, है ना। तो एक 90 मिला, है ना, और ये जो BC है ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन हुआ, और एक परपेंडिकुलर, तो बाई RHS इक्वल हो गया, है ना। तो एंगल C और एंगल B क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। एंगल C जो है, दिस एंगल, क्योंकि हम लोग ये पकड़े थे ना, तो ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ये क्या होगा, इक्वल होगा CPCT से, है ना। बस हो गया। तो वी विल राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT। और ये पता है, अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो एंगल B के ऑपोजिट में क्या है, AC। एंगल C के ऑपोजिट में क्या है, AB। तो एक थ्योरम था कि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा, है ना। तो बाई दैट थ्योरम वी कैन डू इट, है तो वी विल डू इट, ओके। सो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट